DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. So, good evening, all aspirants. I am Satyam Khanna. I come from Indore, Madhya Pradesh. I completed my BTech in Electrical Engineering from Indian Institute of Technology, IIT Jodhpur in 2022. In my fourth year of BTech, that is in 2022, I had secured All India Rank 42 in GATE Electrical Engineering and All India Rank 35 in GATE Instrumentation Engineering. Post that, I worked as officer in one of the PSUs. After which, I received my result of ONGC and I joined ONGC to GATE 2022 electrical engineering rank. I have been working as class 1 officer in ONGC Ahmedabad Asset since 1.5 years. My complete preparation of UPSC ESE was with job. So I would like to divide the talk into six parts. First would be general preparation structure. Second would be prelims, then mains, then interview, then notes and revision strategy. After that, general tends to prepare with job or college. I would suggest to kindly keep copy and pen with you and pen down the things which would be relevant in your context, which you will find in this video. So, firstly, coming to general preparation structure, there must be people from two major groups. Firstly, जो GATE और ESE एक साथ prepare कर रहे होंगे, and the second group would be the one which would be preparing completely for ESE. So, though I had secured all India rank 42 in GATE Electrical Engineering in 2022, but this session is completely for ESE, so I might not be able to address most of the queries of GATE aspirants. However, many things would be relevant to them also. Now, coming to the syllabus for this examination. So, firstly, we have 14 technical subjects, 6 non-technical static topics, then engineering mathematics, aptitude, and current affairs. So, the 6 non-technical static topics are environment, ICT, ethics, project management, standard quality, and design drawing and safety. So, these are the 6 major topics which you have to study in GS as static topics. After that, for those who are preparing GATE and ESE together, we have 14 subjects to do, out of which 10 are common with GATE. So 4 subjects are to be prepared distinctly. As in, आपको 4 सब्जेक्ट जो है वो अलग से प्रिपेयर करने होंगे. तो मटेरियल साइंस, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड कंप्यूटर फंडामेंटल, ये 4 सब्जेक्ट आपकी गेट के सिलेबस से अलग है टेक्निकल में. अदर दैन दैट जीएस तो आपको पूरा ही प्रिपेयर करना होगा ईएसई के पर्सपेक्टिव से. उसके बाद when we come to stages of this examination, then it is divided into 3 stages, that is prelims, mains and interview. Prelims is of 500 marks, mains of 600 marks, and interview, that is personality test, is of 200 marks. However, I believe that the most important stage in this preparation is mains, because I have a senior who is working as an IAS. He had cleared civil services in 2021. So he had told me कि UPSC का पेपर is like a reality show, कि जिसमें एक पहला ऑडिशन होता है. तो प्रीलिम्स इज एन ऑडिशन जिसमें वो लोग फिल्टर आउट कर ले रहे हैं जिनके बीच में वो गेम करवाना है, एंड मेंस इज द एक्चुअल गेम, मेंस एंड इंटरव्यू जहाँ पे वो रियलिटी शो चलेगा. तो सिमिलर इज द थिंग विद यूपीएससी एग्जामिनेशन. तो प्रीलिम्स में जैसे इस एग्जाम में भी आप 30, 40, 50 नंबर तक का गैप बना सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेंस देन जो गैप बन पाता है it is of 150 marks, 120 marks. I have seen such huge gaps between the marks of two candidates. So mains is the most important stage, I believe. So मैंने भी जब प्रिपरेशन शुरू की थी 2023 में, मैं 2024 के लिए शुरू किया था. 23 में मैंने फॉर्म वगैरह तो कुछ भरा नहीं था, तो फिर भी मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी थी, एंड मैं उसको अपियर करता रहता था. मेन से ही मैंने तैयारी शुरू की थी. उसके बाद जैसे ईएससी मेंस की टेस्ट सीरीज खत्म हुई तभी सिविल सर्विस मेंस की टेस्ट सीरीज आ गई. तो मैंने सिविल सर्विस की भी, मैंने तैयारी तो नहीं कर रहा था मैं सिविल सर्विस की, बट उसकी ऑप्शनल की जो टेस्ट सीरीज थी इलेक्ट्रिकल की वो भी मैंने दे दी, ताकि रिटर्न की प्रैक्टिस जो है राइटिंग की वो बनी रहे मेरी. उसके बाद साथ साथ में मैं उन्हीं टॉपिक्स के प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यू कर लेता था, ईएससी प्रीलिम्स के, इलेक्ट्रिकल के, कभी कभी थोड़े बहुत ही ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लिए. हाउएवर मतलब जो फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन थी प्रीलिम्स की वो मैंने लास्ट के 4 मंथ में की, जिसमें मैं पीवाईक्यू को एक बार रिवाइज कर ले रहा हूँ और नोट्स को भी अब उसी पर्सपेक्टिव से रिवाइज कर रहा हूँ कि आई हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज एंड दे शुड कम हैंडी ड्यूरिंग द पेपर. तो वो जो प्रिपरेशन थी प्रीलिम्स की लास्ट के 4 मंथ्स में की. एंड उसके बाद जो इंटरव्यू की पर्सपेक्टिव से है, तो आई बिलीव कि फ्यू क्वालिटीज यू हैव टू इंग्रेव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रिपरेशन व्हिच आर रिक्विजिट फॉर दिस एग्जामिनेशन. So I believe that they should be inculcated in your attitude right from the beginning. So now coming to the sources of preparation. So first thing was coaching material. Like you should buy material from any of the coachings, any standard material.
which should consist of workbooks that are for GS and mains because they are most important. Like you might require extra sources of practice for GS paper 1 of prelims and mains. After that, you should buy PYQ books of both electrical and electronics for prelims and mains both, and they should be from at least two coachings. बिकॉज होता क्या है कि आप एक कोचिंग का सोल्यूशन देखते हैं, आपको लग सकता है कुछ मिस्टेक है इसमें या इसने कुछ मिस आउट कर दिया है, कंसेप्चुअली इनकरेक्ट है, डिस्क्रिपेंसी है, तो दूसरी कोचिंग के सोल्यूशन से उसको रेफर करके रेक्टिफाई कर सकता है. एंड उसके बाद एक इंटरव्यू पीवाईक्यू बुक ये होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर जो इंटरव्यू में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी एक आपके पास किताब रहनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे काफी काम आएगी. Now there were 8 subjects for which I had to follow standard books. So I am telling you the names. कभी-कभी ऐसा होता था कि ये सफाइस नहीं कर पाते थे PYQs, तो उसके लिए मुझे बुक्स फॉलो करनी पड़ती थी. तो द फर्स्ट थिंग वाज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, उसके लिए ओपेनहाइम मैंने फॉलो की. EMFT के लिए MNO SADI को फॉलो किया. डाउनलोडेड द PDF फ्रॉम गूगल एंड आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम ओनली इन द लैप्लाशियन इक्वेशन प्रॉब्लम्स. तो मैंने डाउनलोड किया एंड सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड कार्टेशियन तीनों कोऑर्डिनेट्स के मैंने सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए. एंड हाँ, एक प्रिकॉशन रखे, आप जब बुक सॉल्व करेंगे ये कोई भी स्टैंडर्ड बुक, तो उसके सबसे पहले आपको सॉल्व एग्जांपल्स ही सॉल्व करना है, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है. सॉल्व एग्जांपल्स में फिर आपको जाना है, ऐसे उसमें लिखा होगा कि दिस हैज बीन डन एज पर इक्वेशन 4.16, तो आप उसमें फिर रेफरेंस लेके बाय दैट रेफरेंस यू कैन गो टू इक्वेशन 4.16 एंड सी इट. सो इस प्रकार से आप थ्योरी को कवर करिए. ऐसा नहीं करेंगे आप पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसमें आपके 2-4 दिन निकल जाएंगे, फिर आप प्रॉब्लम पे आएंगे तो टाइम जाएगा. एनीवेज उसके बाद अगला सब्जेक्ट था मेजरमेंट, जिसमें AK सॉन्ग ही फॉलो करनी पड़ी थी मुझे. पावर सिस्टम से मुझे DP कोठारी एंड CL वाधवा का रेफरेंस देना पड़ा था. मशीन्स में अगेन DP कोठारी एंड PS बिंद्रा. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में PS बिंद्रा. आफ्टर दैट मटेरियल साइंस आई रेफर्ड SP सेठ. And in engineering mathematics, if you feel like the problems are insufficient to test your concepts, otherwise they are insufficient to build up your concepts, it is totally fine because maths requires practice. So in case you feel any problem in any of the topics, just go to the website of Krishna series and order book relevant to that topic. As in if you are facing problem in integral calculus questions, just go to Krishna series website and search for integral calculus. Like there are good authors as in AR Vashishta, AK Vashishta. You can just buy their book and उसमें काफी अच्छा प्रैक्टिस रहता है, उससे आपका इंजीनियरिंग मैथ्स स्ट्रेंथन हो जाएगा. Because in electrical it is in GS paper 1 as well as it is part of technical also. So it is very important. Now coming to the first stage of this examination, that is prelims. तो सबसे पहली चीज मेरा ये कहना है कि जो नोट्स है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टेजेस. तो सबसे पहले नोट्स आपके पास होने चाहिए प्रीलिम्स स्टेज में. प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल प्रेजेंटली मैंने प्रीलिम्स के 4 महीने पहले ही की थी स्टार्ट. पीवाईक्यू मैं पहले कर चुका था प्रीलिम्स के सारे, बट अब पीवाईक्यू को रिवाइज करके उसकी टेस्ट सीरीज देना एंड उसके बाद जो नोट्स है उनको इस पर्सपेक्टिव से रिवाइज करना कि फॉर्मूले हैंडी याद रहे, तो उस टाइप से करने की जो चीज थी वो मैंने लास्ट के 4 मंथ्स में की. So the sources which you should follow for prelims are EAC prelims, electrical PYQs. After that, gate PYQs. Post that we should have electronics PYQs of EAC prelims. And lastly, we can solve civil services examination के जो prelims के PYQs थे 2010 के पहले के. But with the upcoming years, its value is declining. So that should be kept in mind. तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ये ना रहना चाहिए कि सबसे पहले आप EAC के प्रीलिम्स के PYQ कर लें, उसके बाद गेट के आप इनकेस आप ओनली EAC कर रहे हैं तब भी गेट के PYQs इलेक्ट्रिकल के तो आपने कर ही लेने चाहिए क्योंकि वो फिर भी रेलेवेंट होते ही है. एंड उसके बाद टाइम बचे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कर लें एंड लास्ट में सिविल सर्विस प्रीलिम्स के कभी बहुत टाइम बच रहा है तो आप कर सकते हैं. एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज आता है. टेस्ट सीरीज उसकी एनालिसिस की कॉपी बनाए कि जैसे ही टेस्ट हो आप एनालिसिस की कॉपी बनाए एंड बिलीव मी कि इससे काफी ज्यादा आपके स्कोर में एड ऑन होता रहेगा इनकेस आप इस कॉपी को अच्छे से मेंटेन कर पाए. तो आप सभी जो भी मिस्टेक्स हो रही है, जो गलत हो रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनको एक कॉपी में लिखते जाइए. उसके बाद जो GS का पेपर है प्रीलिम्स में, इसके लिए मैंने यही फॉलो किया, कोचिंग में जो नोट्स थे उनको याद किया. उसके बाद जो एक वर्कबुक थी कोचिंग की DPP शीट वर्कबुक या जो भी आपके पास हो क्वेश्चन बैंक, उसको सॉल्व करिए. उसमें आपने जैसे क्वेश्चन को टिक किया, आपको जो लग रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर चेक कीजिए वो सही था या नहीं. फिर आप अपना थॉट प्रोसेस देखिए और जो सॉल्यूशन में थॉट प्रोसेस दे रखा है उस क्वेश्चन के लिए वो देखिए. ऐसे करके आपका डायरेक्शन आपको मिलने लगेगा कैसे आप सही कर सकते हैं क्वेश्चंस को. उसके बाद आप PYQs कीजिए क्योंकि उससे फिर आपको डायरेक्शन इसका मिल पाएगा कि पेपर में फिर कैसे करना है, रियल एग्जाम में से कैसे इम्प्लीमेंट करना है. एंड बाकी GS में भी उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज, वही उसके साथ आप GS की भी देते रहेंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे. Now coming to the second stage of this examination, that is mains.
तो मेंस के लिए सबसे पहले सोर्सेस होंगे आपके ईएसी मेंस के जो पीवाईक्यूज है इलेक्ट्रिकल के, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यूज, फिर कोई कोचिंग की स्टैंडर्ड वर्कबुक एंड उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो स्टैंडर्ड बुक के सॉल्व क्वेश्चंस आप उसमें देख सकते हैं कि आप सॉल्व एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं इनकेस आपको इनमें से नहीं हो पा रहा कुछ सॉल्व तो। एंड लास्टली अगर बहुत टाइम बच रहा है तब आप सिविल सर्विस मेंस के पीवाईक्यूज करिए। तो मेरा ऐसा था कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल के जो है ईएसी मेंस की वो पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है पूरे, मतलब एक कॉपी बना के उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको उनमें कहीं दिक्कतें आएंगी एंड मतलब जहाँ दिक्कत आई फिर वहां पे आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर लेना है कि मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग थोड़े ज्यादा आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर ली है एंड प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज में उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स देख ली है, बट ज्यादा रेंज के बाहर नहीं जाना है क्योंकि मेंस इज वेरी वाइड। उसके बाद एक चीज थी मुझे अभी भी याद है, मेरे सर थे तो मेंस के टाइम हुआ क्या था कि मैं तो पीवाईक्यू कर रहा था तो मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी कि मतलब ऐसा कंसेप्ट पूरा बेसिक से पूरा एंड तक जा रहा है, मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पे ही निर्भर हूँ, ऐसा लग रहा था। बट आई टोल्ड माय सर देन कि सर फीलिंग नहीं आ रही, तो सर ने एक चीज बोली थी तो मुझे आज तक याद है, उन्होंने बोला था कि फीलिंग के पीछे मत भागो, पहले क्वेश्चंस करने के पीछे भागो सारे। एंड आई बिलीव कि दैट वाज कंप्लीटली ट्रू एंड इन टुडेस सिनेरियो आई बिलीव दैट इज indeed that is true. What happens कि even if you go to any new job or any new degree if you begin, then starting में आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको टेस्ट आना शुरू होगा जब आप एक बार उसको कर लेंगे। तो सिमिलर थिंग हैपेंड हियर इन मेंस कि पहली बार पीवाईक्यू किए तब तो फील नहीं आई, बट पीवाईक्यू कर लेने के बाद एक पर्सपेक्टिव पता चल गया कि क्या डिमांड कर रही है यूपीएससी। अब उस हिसाब से फिर मैंने आगे की अपनी पढ़ाई की कि उसमें नोट्स को मैं उस पर्सपेक्टिव से देख लेता था, फिर वहां से जो समझ नहीं आया वो स्टैंडर्ड बुक के सॉल्व एग्जाम्पल से कर लिया, ऐसे करके फिर मैंने कवर अप किया चीजों को। एंड उसी प्रकार फिर मैं टेस्ट सीरीज देता था आगे। टेस्ट सीरीज अब मैं बताता हूँ आपको एनालाइज करने का तरीका। उससे पहले पीवाईक्यूज को लेके मैं एक चीज कहूंगा, आप पहले सॉल्यूशन कॉपी बनाएं, उसकी सॉल्व करें एंड उसके बाद आप उसको 2 बार एटलीस्ट करना होगा, उसके बाद एक बार रिवीजन के टाइम पे भी आपको सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने होंगे, तो ये भी चीज आप याद रखिए। अब टेस्ट सीरीज के बारे में बता दो कि उसको एनालाइज कैसे करना है। तो अब जैसे एक टेस्ट देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके इवेल्युएट हो जाएगी कॉपी, वो जो इवेल्युएटेड कॉपी है उसको स्कैन करके एक जगह सेव रखी है, फिर आपको टॉपर्स की जो आंसर स्क्रिप्ट है उस टेस्ट के वो अपलोड किए जाएंगे। अब वो टॉपर्स के जो पहले 3 टॉपर्स के आंसर स्क्रिप्ट है ये आप डाउनलोड करके रख लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के उस टेस्ट के, एंड उनसे आप फिर बाद में जब एनालाइज करेंगे टेस्ट को तो फर्स्टली देयर मस्ट बी क्वेश्चंस व्हिच वुड हैव गॉट करेक्ट, तो आप पहले उनको देखिए एंड अप्रिशिएट कि यू गॉट देम करेक्ट बिकॉज दे आर लॉन्ग मेंस क्वेश्चंस of 12-20 marks, so that is good thing. After that जो questions आपसे मतलब गलत हुए सिली मिस्टेक के कारण, तो उनको आप एक कॉपी में वही यहाँ भी एनालिसिस कॉपी वैसी वर्क करेगी उसमें लिखिए ये मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन में। उसके बाद जो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई उनको एक बार आप सॉल्यूशन देखिए, बट सॉल्यूशन से पहले टॉपर की आंसर कॉपी देखिए एंड उसमें चेक कीजिए उसने वो सही किया था, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मतलब मैं इस तरह से सोच रहा हूँ तो गलत ब्लंडर हो रहा है क्योंकि उसको टॉपर सही करके आ रहा है। ऐसे करके आप फिर उसको नोट कीजिए कि ये कंसेप्चुअल मिस्टेक। तो द नेक्स्ट थिंग इसकी जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे फिर उनमें आपने जैसे देखा, फिर टॉप 3 के आंसर शीट्स में आपने देखा उनमें से किसी से हुआ है तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपको उसकी मेथोडोलॉजी फॉलो करके आपको सही करना ही है, क्योंकि एनीवन समवन इन इंडिया इज गोइंग टू गेट इट करेक्ट ऑन दैट डे, तो आपको करना ही पड़ेगा। इनकेस अब इन तीनों से नहीं हुआ है तब फिर आप सॉल्यूशन को देखिए जो कोचिंग ने अपलोड किया है, फिर उसमें आप देखिए कि वहां पे क्या मेथोडोलॉजी है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप नोट डाउन करिए एंड अप्रिशिएट की यू कुड कॉम्प्रिहेंड इट एंड डू इट करेक्टली, एंड इन केस नहीं समझ आ रही है तो छोड़ दीजिए क्योंकि many questions are in mains are such that you cannot solve them even there, काफी पोर्शन नहीं कर पाते लोग उसमें एंड हाईएस्ट भी 600 में से अराउंड 400 ही रहता है, तो इस कारण से आप उसको छोड़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू स्टेज, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मतलब एक 2022 के टॉपर थे शायद अभिषेक मिश्रा करके मैकेनिकल के, उन्होंने एक चीज बताई थी कि इंटरव्यू के सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इंटरव्यू के जो सब्जेक्ट है वो आप खुद है, तो वो चीज हमेशा सही बैठती है इंटरव्यू में। तो फर्स्ट थिंग इज डैश जो आपसे भरवाया जाता है, डैश की एवरी डिटेल एवरी चीज, मतलब ये कि आपके घर के सामने के अगर रोड का नाम कुछ है एबी रोड है तो व्हाई इज इट एबी रोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबी, मतलब इस डिटेल तक आपको हर चीज पता होनी चाहिए डैश पे, क्योंकि इट इज द ओनली थिंग व्हिच द पैनलिस्ट इज गोइंग टू हैव ऑन दैट डे अलोंग विद टू इवैल्यूएट यू। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हर डिटेल आपकी लाइफ की, लाइक फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, like from your hobby, everything that has been mentioned in that is to be prepared in detail। लाइफ में आपने कोई डिसीजन लिया तो क्यों लिया, उसका जस्टिफिकेशन,
एक जस्टिफाइबल वे में आप उसको बता पाए, पैनलिस्ट के सामने रख पाए। तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। आफ्टर दैट few technical things which I had to prepare was India's power scenario, as in different percentages of different power sources in generation as well as in installed capacity. After that, renewable energy, then few schemes related to electrical vehicles, renewable energy, green energy, and so on. And after that, previous year की जो transcripts थे, that you have to prepare. As in, you can go to few Telegram channels or websites wherein like Quora you can find कि क्या क्या transcript आए थे, और few coaching websites also provided. So from 2-3 coaching websites you can take a transcript कि क्या क्या questions पूछे गए थे पिछले सालों में, आप उनको नोट करके रखिए और उनको मतलब एक इसमें रख के उसको ट्राई कीजिए कि आप कैसे आंसर करेंगे। अकेले में बैठ के रूम में उसको आंसर करते जाइए आप इन क्वेश्चंस को। नाउ सेकंड इज कि आप अगर जॉब में हैं तो एवरीडे मतलब डे टू डे आप जॉब में क्या करते हैं वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। बिकॉज व्हाट पैनलिस्ट डू इज कि दे ट्राई टू गेट इनटू इंट्रोगेशन काइंड ऑफ थिंग कि आप जॉब में ये करते हैं, अच्छा अच्छा, और इसके बाद में आप ये करते हैं। बट द थिंग इज दे वांट टू नो कि हाउ डीपली यू नो योर जॉब, एंड आपके डिपार्टमेंट को लेके, आपके सब डिवीजन मतलब जिसमें आप है, सब डिपार्टमेंट में है, इन सबको लेके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा पिन पॉइंटेड हो जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। तो इस प्रकार से अपनी जॉब को तैयार कीजिए। उसके बाद प्रीवियस जॉब में थे वो भी एक उसी तरह से तैयार करना होगा। बीटेक प्रोजेक्ट है। एंड इंटरव्यू के टाइम पे तो मैं बोलूंगा कि चैट जीपीटी का पेड सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए आपने, क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे लिया था, काफी बड़े बड़े पीडीएफ होते थे, like I have to separate read from the chat. So the thing was कि it took lot of time कि मैं हर पीडीएफ को पढूं, उसके बाद उसके डिटेल में जाऊं, फिर उसके बाद मैं पढ़ने के बाद पता चलेगा सही पीडीएफ था या नहीं, उसके बाद फिर आई हैव टू समराइज दोस थिंग्स, देन आई प्रिपेयर माय आंसर। सो चैट जीपीटी ने इस तरह से हेल्प की कि आई यूज्ड टू डायरेक्टली गिव ऑल द पीडीएफ्स टू हिम, डायरेक्टली फीड टू हिम, एंड देन टाइप की काइंडली समराइज इट इन फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट। एंड फाइनली चैट जीपीटी यूज्ड टू गिव मी इन फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट। लाइक फर्स्ट आइटरेशन में थोड़ा गलती होती थी, फिर मैं उसको बार बार चेंज करवा करवा के पाँच दस आइटरेशन तक मतलब, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट में हो जाता था ये। एंड सब कुछ एक एक्सेल शीट या वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आ जाता था, जिसको डायरेक्टली आई हैव टू रिमेंबर, एंड देन आई कैन एनहांस माय नॉलेज। सो चैट जीपीटी प्लेड अ वेरी गुड रोल। आफ्टर दैट टेक्निकल जो है इंटरव्यू के लिए, उसमें नोट्स जो आपने बनाए थे, एज आई टोल्ड, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, मेड बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। नोट्स आपके पूरे मतलब याद कर लेना आपको कंसेप्चुअली। उसके बाद जो पीवाईक्यूज है इंटरव्यू के, जो बुक मैंने बताई थी स्टार्टिंग में वो, एंड जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको, एंड अब इसमें कहीं आप अटक जाए किसी क्वेश्चन में टेक्निकल में, तो आप बुक को रेफर करिए। बुक में जो लैंग्वेज लिखी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, यू विल हैव टू डायरेक्टली फॉलो दैट, एंड मतलब इफ यू गिव एनी आंसर देन यू शुड आल्सो आंसर इन दैट टर्मिनोलॉजी, सो दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन कि दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू बुक्स एंड दोस थिंग्स। आफ्टर दैट मॉक इंटरव्यूज जितने हो सके उतने दीजिए। एज इन माई आई हैड गिवन नियरली 15 to 20 मॉक इंटरव्यूज। ये कहीं से भी हो सकता है, आपके टीचर से, आपके फ्रेंड से, कोई फाइनेंस में है, लॉ में है, कोई सिविल इंजीनियरिंग का फ्रेंड है, किसी ने पिछले साल एग्जाम क्लियर की है, सबसे मतलब आप मॉक इंटरव्यू करवाइए, एक एक मतलब जूम पे आके आपके दोस्तों से, जितने एक्विंटेंस है सबसे। उसके बाद पीपल हु आर वर्किंग इन सीनियर पोजीशंस, एज इन आई हैड a retired scientist, Dr. Odde Siva Kesavam, who stays in Hyderabad. He is a retired scientist from DRDO. So he helped me. I told him, sir, I want a mock interview from you because you seem to be quite knowledgeable person. So he took a mock interview of 1 hour and then gave me feedback, and questions were really good. Like even at this age, he used to think in that way. After that, writers, जो मैंने किताबों के नाम बताए, इनके पीछे राइटर्स कभी कभी अपना ईमेल आईडी या डिटेल्स छोड़ जाता है। आप उनको भी मेल कर दीजिए कि सर आई एम अपियरिंग फॉर दिस इंटरव्यू, कुड यू प्लीज टेक एन इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ऑफ माइन। काफी बार रिप्लाई नहीं आएगा, पर कोई एक आधा भी आपको रिप्लाई कर दे तो मतलब दे डू हेल्प। लाइक आई हैड मॉक इंटरव्यू विद डॉक्टर डीपी कोठारी सर, एंड ही ऑनेस्टली हेल्प मी। लाइक उस मॉक इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज बताई, पावर सेक्टर को लेके जो जो क्वेश्चन हो सकता है उनको लेके। एंड लास्टली कोचिंग्स के जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं सभी मैंने ज्वाइन कर लिए थे, एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। लाइक मैं एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मेरी ऑफिस की छुट्टी होती थी 5:30 बजे, एंड उसके बाद तुरंत आके सामान पैक करके 7:05 पे होती थी तेजस राजधानी स्वर्ण जयंती फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली। तो आदत पड़ गई थी, मतलब कि काफी वीकेंड्स में उसी को पकड़ते थे हम, उसी में बैठ के जाते थे, सुबह 7 बजे न्यू दिल्ली पे पहुंचते थे, एंड इंटरव्यू देके फिर ट्रेन या फ्लाइट से वापस आ जाते थे ऑफिस ज्वाइन करने मंडे में। तो जितना हो सके आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, इट वुड एनहांस योर पर्सनालिटी,
and would make you an empowered citizen with knowledge. Because काफी चीजें मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान पता चली कि सोलर पार्क्स कहाँ है, विंड पार्क्स कहाँ है, ये सब. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नोट्स एंड रिविजन. नाउ नोट्स बनाने की मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं नोट्स बनाता था मल्टीपल कलर के पेन से, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन और अपना ब्लैक. इन सभी कलर के पेन से मैं नोट्स बनाया करता था ताकि कलर कोडिंग के कारण इजी पड़ता था याद करना. फॉर्मूला को रेड से लिखा, इट इज बिलीव दैट रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, तो फॉर्मूले उसके कारण याद हो जाते थे. उसके बाद ब्लू पेन से नॉर्मल थ्योरी लिखी, हेडिंग्स ब्लैक पेन से, ग्रीन पेन से कुछ एकदम नया पता चला था उसको लिख दिया. ऐसे करके नोट्स काफी अच्छे हो गए थे. एंड अंडरलाइन करता था उन्हीं में जो भी काम का है कुछ वर्ड्स की, जब पढ़ूंगा तो सीधा अंडरलाइन चीजें पढ़ूंगा अगर टाइम नहीं रहा तो. उसके बाद इन नोट्स को डिजिटाइज कीजिए. मैं मतलब कुछ दिन मैं यही करता था, रात को एक एक घंटा उन सबके फोटो लेना एक दो घंटे में, और उनको फोटो लेके गूगल ड्राइव पे अपलोड किया. अब ये काफी हेल्प करता था. कहीं मैं कैब पकड़ रहा हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कहीं पे भी मैं उसको सीधा ओपन करके पढ़ना शुरू कर सकता था. एंड ऐसे 70 80 पेज तक पढ़े जाते थे एक एक घंटे में, जब कुछ काम नहीं रहता था तो. इसलिए डिजिटाइज कीजिए आप अपने नोट्स को. आफ्टर दैट जब रिवीजन करें तो रिवीजन में मतलब आपको एनालाइज करना है हर डेरिवेशन, उसके पीछे का कंसेप्ट जैसे बताया गया उस फ्लो को पूरा एनालाइज करके आप उस नोट्स को याद करिए. दैट वुड एक्चुअली हेल्प. एंड आफ्टर 2 3 रिविजन आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कीजिए. पहले रिवीजन से नहीं बनाना है क्योंकि फिर आप हर चीज को डाल देंगे शॉर्ट नोट्स में. 2 3 रिवीजन के बाद क्या होगा कि आपको पता चलेगा क्या चीजें आपको याद नहीं रहती अभी भी. फिर आप रेड पेन से उनको लिखिए. एज आई टोल्ड, रेड हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, तो वो याद करने में मदद करता है. आप एक पेज पे, ब्लैंक पेज पे लिखना शुरू कीजिए उन्हीं फॉर्मूलाज को. एंड ये वाले शॉर्ट नोट्स काफी काम आता है. एज एन मुझे अभी भी याद है कि मेंस की सुबह जब पेपर को 1 घंटा बाकी था, उस टाइम में ऐसे ही एक शॉर्ट नोट्स पे जिसमें मैंने सारे ब्रिजेस बना रखे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज के मतलब जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, क्वींस ब्रिज, मैक्सवेल्स ब्रिज, हेज ब्रिज, कैम्पबेल ब्रिज. तो हुआ क्या, उस सुबह में जो एक ब्रिज देख के गया, याद करके गया, तो पिछले कभी आया ही नहीं था मतलब काफी सालों से, वो उस दिन आ गया. ये शॉर्ट नोट्स में था इसलिए मुझे वो याद रह गया पेपर के 1 घंटा पहले, और वो मैं वहां बना पाया. तो एक फायदा इसका ये रहता है. एंड उसके बाद रिवीजन में जैसे आपको क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं इनमें. जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किया पूरी प्रिपरेशन में, मतलब पीवाईक्यूज हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यूज, सॉल्व एग्जांपल्स कहीं के किए थे, आप उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए. अब जैसे आप स्टार्ट करें तो 1 से एंड तक जाना है आपको, लेकिन ऐसे जाना है. पहला क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन आपने हाइड कर लिया, फिर अपने मन में सोचा, इसको ब्रेनस्टॉर्म किया फास्ट कि ऐसे ऐसे करना था. आपको हो सकता है बहुत जल्दी प्रोसीजर याद भी आ जाएगा और आप फिर पहला क्वेश्चन हो जाएगा. ऐसे ऐसे करते करते जहां पे आप अटके वहां पे आप थोड़ा पेन से फिर स्टार्ट करिए सॉल्व करना. फिर अटक रहे तो थोड़ा सॉल्यूशन का पहला स्टेप देख लिया, बाकी नहीं देखा, पहला स्टेप देखा, फिर ट्राई किया आगे, फिर किसी स्टेप पे अटके वैसे देखा. ऐसे करते करते आपको करना है. या कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर सॉल्यूशन देखा, तो आप मान भी सकते हैं कि अभी क्वेश्चन ही टफ है क्योंकि एक दो बार पढ़ के याद करना पड़ रहा है इस तरीके से. तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे एंड आप ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे क्वेश्चन पे. नाउ जनरल टिप्स फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग विद कॉलेज और जॉब. तो कुछ चीजें जो मुझे इस साल पता चली कि जैसे आप मंडे टू फ्राइडे कॉलेज या जॉब से थक जाते हैं एंड सैटरडे संडे आपका पढ़ाई का टाइम रहता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फ्राइडे को लेट तक पढ़ के लेट सोए, जिससे आपका सैटरडे को आप लेट उठेंगे. आपको क्या करना है, फ्राइडे को जल्दी खाना खा के वैसे कुछ करके मतलब फ्राइडे को जल्दी सो जाना है ताकि आपको ज्यादा स्लीप लेनी है, तो आप जल्दी सो के सैटरडे को जल्दी या सेम टाइम तक उठ पाए, थोड़ा जल्दी उठ पाएंगे उससे, एंड आपकी स्लीप भी ज्यादा अमाउंट की हो जाएगी. तो ये एक चीज है जो एडवांटेज करेगी, आप फ्राइडे को जल्दी सो जाइए. उसके बाद लंच ब्रेक जो है उसको यूटिलाइज कीजिए क्योंकि हर जगह 1 से 2 घंटे का टाइम रहता है ये लंच ब्रेक का, आप कहीं भी हो. तो उसमें आपने 10 15 मिनट में लंच कर लिया. उसके बाद ये डिजिटाइज नोट्स हो गए, इनको पढ़ा आपने. ऐसे करके 1 घंटे में आप काफी 50 60 पेज की चीजें मतलब नोट्स आप उस टाइम में पढ़ सकते हैं. उसके बाद बी एफिशिएंट एट योर वर्क. ट्राई टू फिनिश दी वर्क विद इन दोज 8 hours और 10 hours, बिकॉज इट वुड हेल्प यू कि आपने जैसे काम कर लिया, देन इट वुड नॉट स्पिल ओवर टू द वीकेंड और इट वुड नॉट स्पिल ओवर टू फर्दर आवर्स. आप वहीं पे इतने आवर्स में काम कर पा रहे हैं एंड आके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं. So that is a good thing. And lastly, as I told, digitize your notes. They would be handy and they would come handy at every time. Like you can revise them anywhere. So that's it from my end, and I wish all the best to all the aspirants for engineering services and GATE examination. Thank you.